مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير. پیدائش ہوئی تھی 571 عیسوی میں، انتقال ہوا کب؟ 11 ہجری میں. ٹھیک ہے. ہاں اب یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینہ ہے، 10 ہجری میں ہے، اور ٹھیک ہے 10 ہجری میں اللہ کے نبی، وہیں سے بھی ہم کو وہاں سے بھی کچھ حالات سے معلوم ہو جاتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب اس دنیا سے کوچ کرنے والے ہیں. ٹھیک ہے. ابھی اس دنیا سے جانے کا قریب اللہ کے نبی کا قریب آ گیا ہے. دلیل کیا ہے؟ رمضان کا ایک اعتکاف، 2 رکعت سنت. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری رمضان میں کتنی مرتبہ قرآن سنا تھا، کتنے دن اعتکاف کیا تھا. ہر دن 10 دن اعتکاف کرتے تھے، لیکن آخری دنوں میں 20 دن اعتکاف کیا تھا. یہ ایک دلیل ہو گئی. اب اس کے بعد جب محرم کا مہینہ، جب رمضان کے بعد کون سا مہینہ ہے؟ شوال، ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم، صفر، ربیع الاول، یعنی 6 مہینے سے پہلے اب یہاں پہ کچھ نشانیاں ظاہر ہونا شروع ہو گئی. جو اعمال سے جو ہمیں لگ رہا تھا، مطلب صحابہ لوگ کو لگ رہا تھا اس دنیا سے جانے والے، رمضان کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جسم میں وہ بیماری شروع ہو گئی جو خیبر کے موقع پر اس یہودی عورت نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ زہر دیا تھا. وہ اس کا اثر شروع ہو چکا تھا، اس کا اثر شروع کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اما عائشہ رضی اللہ عنہ کو کہا دے، اے عائشہ میں اس زہر کی تکلیف کو محسوس کرتا ہوں جو یہودی عورت نے خیبر میں مجھے دیا تھا. یعنی 6 مہینے سے پہلے جسم میں ایک بیماری کے علت شروع ہو گئی تھی، مرض کی چیزیں شروع ہو گئی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم درد ہوا کرتا تھا، کبھی کبھی بخار چڑھ جایا کرتا تھا، سخت بخار ہوتی تھی. سخت بخار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا. شوال کا مہینہ گزرا، سفر، اپنے ذی القعدہ کا مہینہ گزرا، ذی الحجہ کا مہینہ گزرا. ذی الحجہ کے مہینے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام کے تمام لوگوں کو کہا، اے لوگوں اس سال کے لیے میں حج کی جا رہا، جو جانا چاہتا میرے ساتھ آ جائے. ہو سکتا ہے کہ تمہارے درمیان میں نہ رہوں. اور بہت سارے صحابہ حجۃ الوداع کے موقع پہ آخری حج جس کو کہا جاتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان لوگوں نے حج کیا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حج کے جتنے خطبات دیے ان میں بھی یہ بات ہم کو ملتی ہے کہ جب عرفہ کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطبہ دیا، اس میں بھی اللہ کے نبی نے کہا کہ لوگوں حج کے تعلق سے جو مجھ سے سیکھنا چاہتے وہ سیکھ لو، ہو سکتا ہے اگلے سال میں نہ رہوں. یہ بھی یہاں پہ ایک بات مل گئی جو پھر حجۃ الوداع مل گئی. خطبہ جو دی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں خطبہ بھی کہا کہ آج کے دین کے مکمل اللہ نے مکمل کر دیا، تمام کے تمام چیز مکمل ہو گئی، اور اب میں دین کو مکمل کر دیا. اللہ کو گواہ رہ کر اپنی شہادت کو انگلی اٹھا کر کہا اور 3 مرتبہ کہا، اے اللہ تو نے جو مجھے امانت دی تھی میں نے دین کو مکمل کر دی. اے اللہ میں نے لوگوں تک پہنچا دیا، اے اللہ میں نے لوگوں تک پہنچا دیا. اللہ کو گواہ رکھ کر تمام صحابہ کو وہاں پہ کھڑے ہو کے اللہ کے نبی پورا مکمل دین کو ہم تک پہنچا دیا. اب یہاں سے بھی اللہ کے نبی نے حجۃ الوداع کے دن کہا کہ ہو سکتا ہے لوگوں کہ میں اگلے سال تمہارے درمیان نہ رہ سکوں حج کے دوران. پھر حج ہوا، پھر ذی الحجہ کے مہینے میں، اور پھر حج کو مکمل کرنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ آئے ہوئے تھے حج کے لیے اور لوٹ گئے کدھر؟ مدینے کی طرف. ٹھیک ہے. مدینے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رہ رہے تھے نا، تو اب مدینے میں حج کے بعد، اب اس بات کو غور سے سنیے گا، حج کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شیڈیول تھوڑا بدل چکا تھا. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ڈیلی کا جو روٹین تھا وہ بدل چکا تھا. اللہ کے نبی زیادہ سے زیادہ کثرت کرتے تھے، زیادہ سے زیادہ ذکر اور اذکار میں لگے رہتے تھے. اللہ رب العالمین کا زیادہ سے زیادہ نماز پڑھتے، استغفار پڑھتے، دعائیں پڑھتے. اللہ کے رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے دن اور رات لگ جاتے. صحابہ یہ چیز دیکھ رہے تھے. وہاں پہ مورخین اور حدیثین کہتے ہیں جو اللہ کے نبی کے اعتراض رہتے اس بات کو سمجھ چکے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب ہم سے الگ ہونے والے ہیں، ذی الحجہ کا مہینہ گزرا، اور پھر ذی الحجہ کا وہ آیتیں سورہ نصر کی، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ فسبح بحمدہ واستغفروا، یہ آیت نازل ہو گئی. اب اللہ نے تم کو کیا فتح دی جو در ذوق اسلام میں داخل ہوتے جا رہے ہیں. اول غفوت بہت زیادہ قبیلے کو اسلام میں داخل ہوتے جا رہے تھے. ابھی آپ کا کام کیا تھا؟ اللہ نے آپ کی مدد کر دی. اب آپ کا کام کیا ہے؟
फसबी बेहमदिका अस्तगफिर। अब आपका क्या काम करना है? अस्तगफार करना है, तस्बीह बयान करना है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लग गए। जिल हिज्जा का महीना गुजरा। जिल हिज्जा का बाद कौन सा महीना आया? मुहर्रम आया। मुहर्रम का महीना आया। मुहर्रम के महीने में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो जिस्म में जो बुखार की जो वो बीमारी की जो अल्लाह के नबी जो रमजान से जो महसूस कर रहे थे, अब उसके अंदर थोड़ा सा इजाफा शुरू होना स्टार्ट हो गया, वो तकलीफ बढ़ना शुरू हो गया। मुहर्रम का महीना गुजरा, सफर का महीना आया। सफर के महीने के ताल्लुक से एक रिवायत मिलती है कि अम्मा आयशा रजी अल्लाह अन्हा कहती है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सहाबी के जनाजे में गए हुए थे। किसके जनाजे में गए हुए थे? एक सहाबी के जनाजे में गए हुए थे। जनाजे में शिरकत की, नमाज अदा किया। नमाज से जब वापस आ लौट रहे थे तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत सर में दर्द हुआ, शिद्दत का दर्द होने लगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सर को पकड़ लिए, इतना ज्यादा दर्द होने लगा। और फिर जब उसके बाद जब आए सफर के महीने में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 29 सफर और 11 हिजरी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस्म में बुखार की शिद्दत इतनी ज्यादा इख्तियार कर ली क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस्म से अब हरारत बाहर निकलना शुरू हो गई। महसूस बाजू बैठने वाला इंसान बाजू महसूस करने का। अब अल्लाह के जो नबी की जो तकलीफ बढ़ती गई कब से? 29 दिन से। 11 हिजरी मुहर्रम के बाद आ गए ना हम, 10 हिजरी से हम आ गए ना, 11 हिजरी में आ गए ना हम। अब उसके बाद सफर का महीना। अब अल्लाह के नबी बहुत 14 दिन बहुत तकलीफ में रहे। अब सफर के ये 2 दिन 29 और 30, 29 और 30 ये 2 दिन और रबी अव्वल के 12 दिन। इंतकाल का हुआ अल्लाह के नबी का 12 रबी अव्वल। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शदीद तकलीफ में रहते थे, लेकिन फिर भी जाते मस्जिद नबी में और नमाज पढ़ते घर को लौटाते, नमाज पढ़ते घर को लौटाते। और वो दिन आया मेरी बहनों 9 रबी अव्वल 11 हिजरी का दिन आया। अब वो दिन का जुमरात का दिन था और जुमरात के दिन तक मगरिब तक अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद इमामत की। और जब ईसा के नमाज के लिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हुए तो अल्लाह के नबी के जिस्म में जो बुखार की शिद्दत इतनी ज्यादा शिद्दत इख्तियार कर ली, इतनी ज्यादा उनके जिस्म में हैयत तारी हो गई कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठने की ताकत बाकी नहीं रही। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अम्मा आयशा को हुक्म दिया कि अम्मा आयशा तुम सहाबा को कहो कि तुम 7 कुओं का पानी लाए, और 7 कुओं का पानी लाया गया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक लगड़ में बैठाया गया, 7 कुओं का पानी डाला गया और उसके अंदर वजह ये थी कि वो पानी की वजह से जो शिद्दत बुखार है वो थोड़ी कम हो जाए, थोड़ी शिद्दत बुखार कम हो जाए। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो 7 कुओं का पानी डाला गया तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो थोड़ा सा शिद्दत बुखार का कम गया। और हम गौर कर सकते हैं कि जो हरारत जो जिस्म के हो सकते हैं, नॉर्मली हम लोग थोड़ा 100 के ऊपर बुखार चला जाए तो हमारे जिस्म का हाल क्या होता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि मुझे एक आदमी के बराबर नहीं आती थी, मुझे 2 आदमी के बराबर ऊपर बुखार आती। ये हदीस में रिवायत में मजूर इतनी शिद्दत आती थी। और फिर 9 रबी अव्वल जो ईशा की जो नमाज थी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके लिए लंगड़े बैठाए गए, पानी डाला गया, थोड़ी सी जो हरारत थी वो कम हुई, वो थोड़ा सा उठे और थोड़ा सा जब जाने की कोशिश की, जब बेहोश होकर गिर गया वहीं पे, तो फिर दोबारा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे वो पानी डाले गए 7 कुओं का। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किए, उठे, फिर थोड़ा सा जब होश में आए, जो थोड़ा सा चलने की कोशिश की, 3 मरतबा ऐसे हुआ, 3 मरतबा और गिर गए। जो तीसरी मरतबा ऐसा हुआ, अम्मा आयशा रजी अल्लाह अन्हा वहाँ पे मौजूद थी। अम्मा आयशा रजी अल्लाह अन्हा ताला अन्हा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, ऐ आयशा आप अबू बकर को कहो कि वो नमाज का इमामत करे। आए अल्लाह के अम्मा ऐसा ने कहा, आए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे अब्बू बहुत नर्म दिल है, वो आपके एहतराम में ज़रो कतार रो सकेंगे, रो पड़ेंगे। उमर को कहिए कि वो इमामत कराए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुस्से से लाल हो गया और जलाल में आ गया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, ए आयशा कहो आप अबू बकर को कि वो इमामत करवाए। अम्मा आयशा ने सोचा कि मैं अज़वाजी उनके 9 बीवियां अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदी थी और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी हफ्ता जो जिंदगी का था वो आखिरी हफ्ता में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसके पास थे?
अम्मा आयशा रजी अल्लाह अन्हा के पास थे और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाज़त ली तमाम उम्मती मोमिनीन से, मैं ऐसा के पास रह सकती हूँ, रह सकते। कितने इंसाफ वाले थे, आला थे। मैं आपके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते तो बोल देते कि मैं ऐसा के पास रहूंगा, लेकिन क्या कहा कि अगर तमाम के तमाम बीवी से क्या तुम मुझे इजाज़त दोगी ऐसा के पास रहने के लिए? तमाम के तमाम बीवियों ने कहा ऐ अल्लाह के नबी, जब आपकी चाहत है तो आप बिल्कुल जा सकते हैं। किसी बीबी ने इनकार नहीं किया। और अम्मा आयशा रजी अल्लाह अन्हा के 1 हफ्ता रहे अल्लाह के नबी 6 रबी अव्वल से लेके अब पूरा हफ्ता अल्लाह के नबी किसके पास रहे? अम्मा आयशा रजी अल्लाह अन्हा के पास रहे। अम्मा आयशा ने क्या सोचा, जो जितना उम्मतुल मोमिनीन ना ये 9 इन सब को मैं अगर बोलूं कि हो सकता है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे बाद उमर को कहें, तमाम के तमाम अल्लाह के नबी के पास लेके आए। तमाम के तमाम बीवी जब यही कहे, जब अम्मा आयशा ने कहा, जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गए कि ऐ आयशा कि तुम्हें वही हरकत की जो यूसुफ वालियों ने यूसुफ के साथ की थी। और फिर कहा जाओ कहो अबू बकर को कि वो इमामत करे। और फिर बोला गया कि फिर यहाँ पे अब यहाँ से ईशा की नमाज से 9 रबी अव्वल का ईशा की नमाज के अब आगे पूरी की पूरी इमामत करने वाले कौन है? अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु। 9 का दिन गया, 10 का दिन आया, 11 का दिन गुजरा, 12 का सुबह आई। तो मुझे बोलिए कितनी नमाजें हो? मैंने नमाजों का नाम इसलिए आपको लेकर समझाया कि ताकि आप मुझे बोले। ईशा की 1 नमाज, जुमरात की 1, उसके बाद जुमा के 5 कितने हो गए? 6, और फिर हफ्ते के 5 कितने हो गए? 11, फिर उसके बाद कितने इतवार के कितना हो गए? 5, फिर पीर की फजर कितने हो गए? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 17 नमाजों की अपनी जिंदगी में आखिरी नमाजें अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हा के जेर इमामत पढ़ी। ठीक है, इस बात को याद रख लीजिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दौरान रिवायत में आता है, सही रिवायत है कि एक मर्तबा मस्जिद को गए और मस्जिद में जाने के बाद अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हा के दाहिने तरफ बैठ गए और बीच में अबू बकर को बैठा दिया और पीछे उनके पीछे पे कौन है? पूरी उम्मत है। इसके जरिए हमें बता दिया कि पहले मैं, फिर मेरी जो तमाम के तमाम मिशन को लेके कौन चलेगा? अबू बकर लेके चलेंगे। और इमामत के जरिए बता दिया कि अब इसके बाद कोई खलीफा होगा तो कौन होगा? अबू बकर होंगे। और तमाम के तमाम लोगों के जो लीडरशिप बनेगा कौन करेंगे? अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु ने करेंगे। अब अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह आता देख के बहुत खुश हुए और मिंबर से हटे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहीं अबू बकर तुम नहीं हटो। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाएं तरफ बैठ गए। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज अदा की। नमाज अदा करने के बाद तमाम के तमाम मस्जिद नबी को सहाबा को कहा, लोगों मैं अपने आप को तुम्हारे दरमियान पेश करता हूँ। अगर मैं किसी पे कोई जुल्म किया है, अगर मैं तुम में से कुछ भी अगर कर्ज देना है, अगर किसी को मेरे तरफ से तकलीफ हुई तो मैं आपके दरमियान तो अपने आप को तुम अपने आप पेश करता हूँ। तुम मुझे उसका सांस ले ले, मुझसे आके बदला ले ले। अल्लाह अकबर। सोचिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को डर था एक छोटी छोटी चीज का। आज हमारे ज़ुबानें खोल देते हैं, हमारे हाथ खोल देते हैं, हमारे दिमाग आज गंदे कर ले, हमारे दिल पूरे के पूरे गैर महरम से भर चुके हैं। आज मुसलमान लड़कियों के थोड़ी देर के लिए सोचिए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मासूम खता, अल्लाह ने हर गुनाह माफ कर दिया, जबकि वो कोई गुनाह करते ही नहीं थे, ना अपनी जिंदगी में कभी गुनाह किया। लोगों के दरमियान का, लोगों मैं तुम्हारे दरमियान हाजिर हूँ, जो मुझसे बदला लेना चाहता वो आके मुझे बदला ले, ताकि वो अल्लाह के सामने क़यामत के दिन वो बदला लेने वाला ना बने। अल्लाह अकबर। कितनी बड़ी अहम वाली बात है ये, गौर करिए। यहाँ पे हदीस में आता है कि एक सहाबी उठते हैं, ऐ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आए अल्लाह के नबी आपने 3 दिनार लिया था, आपने वापस नहीं किया था, शायद आप भूल गए। अल्लाह के नबी ने कहा अब्बास के बेटे अब्दुल बिन अब्बास को कहा कि इसको लाके लौटा दे। फिर एक दूसरे सहाबी उठे कि मैं आपके 3 दिनार देना बाकी हूँ, कि उसको ये दिरहम लेके इसको दे दो। और फिर उठ के कहे, आए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जंगे ओहद में आपने मेरी जो पीठ थी ना वो नंगी पीठ थी, आपने सफ़ों को सीधी करने में मेरी पीठ में थोड़ा सा वो छड़ी को लगाया था। उमर रजी अल्लाह अन्हा वो वाजू बैठे हुए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हालत, बुखार की हालत, बीमारी की हालत है। और वो सहाबी उठे कहा कि मुझे इसका बदला चाहिए। तो उमर रजी अल्लाह अन्हा गुस्से में आ गया, कहने
कहने लगे कि अगर तू बदला लेना चाहे तो मुझसे ले बदला, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मत ले। अल्लाह के नबी ने हाथ रख दिया, ऐ उमर तुम खामोश हो जाओ। अल्लाह के नबी ने उनको खामोश कर दिया। वो सहाबियाँ अल्लाहु अकबर कुर्बान हो जाइए मेरे और आप पर, सहाबा पर। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और आके कुर्ता पहने हुए थे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह के नबी को कहा, ऐ अल्लाह के नबी, जिस वक्त आपने मुझे छड़ी मांगी थी ना, मारी थी ना, उस वक्त मेरे जिस्म में कपड़ा नहीं था, नंगी थी पीठ, तो फिर आपकी पीठ नंगी होने से उमर रजी अल्लाह अन्हु और गुस्से में आ गए। ये कैसा आदमी है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसे कह रहे हैं, अल्लाह के नबी से बदला लेगा। अल्लाहू अकबर। अल्लाह के नबी ने देखिए यहाँ पे इंसाफ का तगाजा, देखिए कितना इंसाफ करने वाले थे। अल्लाह के नबी ने अपने कुर्ते को खोल दिए और और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल्कुल जिस तरीके से उस सहाबी के पीठ खाली थी उस तरीके से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने ओसे ही वहाँ पे ठहर गए और अल्लाह के नबी वहाँ पे खड़े हो गए और वो सहाबी पास आ रहे, तमाम के तमाम सहाबा अल्लाह के नबी को देख रहे, उस सहाबी को देख रहे। उस सहाबी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंच जोर से चप्पी लगाते हैं और हक कर लेते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गले लगा लेते हैं। अल्लाहू अकबर। और फिर वो सहाबी कहते हैं, ऐ अल्लाह के नबी, मैं आपसे कैसे बदला ले सकता हूँ? आपके कुर्बानियाँ, आपके जो मेरी नस्ल आप पे कुर्बान, मैं आपसे कैसे बदला ले सकता हूँ? मेरे तो बस ख्वाहिश यही थी कि मैं आपको गले लगाऊं, क्योंकि मुझे नहीं मालूम था कि मैं फिर इस तरह मैं आपको कभी गले लगा पाऊंगा या नहीं, आपको मिलूंगा या नहीं मिलूंगा। सोचिए थोड़ी देर के लिए कैसी कैसी मोहब्बत है हमारे सहाबा के। अल्लाह के नबी ने अपने आप को मुकम्मल तौर पर वहाँ पे एहसास के लिए खड़ा कर दे। ये नहीं सोचे कि मैं बड़ा हूँ, मैं लीडर हूँ, मैं इस वक्त हाकिम हूँ, मुझसे बदला लेंगे तो लोग क्या कहेंगे। अपनी आखिरत को तरजीह दी। यहाँ पे पॉइंट यहाँ पे है, अपनी आखिरत को तरजीह दी। हमको, मुझको और आपको अपनी आखिरत की तरजीह दी, चाहे हम किसी मुकाम पे हो, चाहे घर के बड़े हो, चाहे उम्मत के कोई लीडर बनाए गए, आप पर इंसाफ करना लाजिम है। जुल्म का एक कतरा रब्बुल आलमीन बर्दाश्त नहीं करता। अल्लाह को सख्त नफरत जुल्म से। हम जुल्म ना बिल्कुल करेंगे, ना करने वालों को करने देंगे। ये हमारी शनाख्त होनी चाहिए। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब ये वाकया हो गया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस क़िसास के बारे में लोगों के दरमियान रख दी और अल्लाह के नबी घर चले गए और घर चले गए और फिर 11 का दिन आया, फिर 12 का दिन आया और फिर वो 12 का दिन था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फजर के वक्त नहीं आए। फजर के वक्त अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में नहीं आए। देखिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने नमाजों की कितनी हिफाजत करने वाले थे। अल्लाहू अकबर। अफसोस है जिस नबी ने आखिरी अय्याम में उम्मत को ये नसीहत की कि लोगों नमाज कायम करो, लोगों नमाज कायम करना और मेरी कब्र को क्या करना, मेरे कब्र को उस तरीके से मत बनाना जिस तरीके से यहूदियों ने, ईसाइयों ने, मजीसियों ने उनके अंबियों को कब्रों को इबादत गाह बनाया। 2 नसीहत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनाए, ऐ उम्मत के लोगों नमाजों की हिफाजत करना और मेरी कब्र को सजदा गाह ना बनाना, मेरी कब्रों को सजदा गाह ना बना। आज मेरी हम नमाजों का हाल देखिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुखार के हालत, बीमारी के हालत में वो सहाबा को कहते हैं, लो सहाबा मुझे अपने गर्दन में लो, और दूसरे इधर 2 सहाबी, इधर 2 सहाबी उनके गर्दन पे हाथ रखते। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबी की तरफ जाते, सहाबा कहते और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चलने नहीं हो रहा, वो जो एड़ियाँ थी ना वो घिस रही थी जमीन में, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज को नहीं छोड़ा। आज हमारे पास कोई फंक्शन है, कोई मेहमान आ जाए या फिर हमारे पास कोई इवेंट हो जाए या हम खाली भी हैं तब पर भी आज हमारी नमाजें कोई फिक्र नहीं है। आखिरी दिन कर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी आखिरी नमाज को भी हिफाजत किए। आज हमारी नमाजों का क्या मामला है देख लीजिए। चाहे कुछ भी हो जाए, अगर हम मुसलमान है ना तो हमारे ऊपर लाजिम है नमाजों की हिफाजत करना। अगर हम अपनी नमाजों की हिफाजत ना करेंगे तो सोच लीजिए कल क़यामत के दिन वो जन्नत की बहस से मैं और आप नहीं जाने वाले। अल्लाह हिफाजत करे ऐसे लोगों से, हम सब के, हमारे नस्लों की हिफाजत करे, हमारे नमाजों की हमारे हिफाजत करने वाला बना दे और वैसे नमाज पढ़ने वाला बना जैसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमको पढ़ने का हुक्म दिया। आमीन। अब यहाँ पे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी दो नसीहत कर दी। देखिए आज हमारी उम्मत का बहुत ज्यादा हिस्सा कब्र परस्ती में डूब चुका है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे दो सजदा गाह न बना। आज हमारे मुसलमान कहाँ ना सजदा करे। अल्लाह के नबी ने अल्लाह ने हिफाजत की, वहाँ पे कोई सजदा नहीं करता और क़यामत तक अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हिफाजत कर रहे हैं। लेकिन आज देख लीजिए पीरों के, वलियों के, ना जाने किनके कब्रों का सजदागाह बना दिया गया। अल्लाह के लिए अपनी जिंदगी के तौहीद वली बना लीजिए, शिर्क से बचा लीजिए, वरना फिर हमारे सहाबा के मेराज पे नहीं है हम लोग।
साहब का मेन मनहज वही मनहज था जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मनहज था। वही रास्ता, मनहज किसको कहते हैं? रास्ते को, तरीके को कहते हैं। ठीक है, मैं लफ्ज थोड़ा सा गुमराह किया जाता है ये लफ्ज को बोल के, इसे लफ्ज में यूज कर रही हूँ। ये कोशिश किया जा रहा है कि मैं ये लफ्ज आपके दिमाग में बैठा। अब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फजर का वक्त आया। कौन सा दिन? 12 रबी अव्वल का दिन आया। उम्मत पे सबसे बड़ा गम का दिन शहादत हुसैन का नहीं था, बल्कि खुद अनस रजी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि हमारे लिए सबसे रोशन दिन वो दिन था जिस दिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना आए। और सबसे गम वाला दिन, सबसे अंधेरा वाला दिन वो दिन था जिस दिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से चले गए। 12 रबी अव्वल का दिन फजर का वक्त है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर में ही नमाज अदा करते हैं। और जब मस्जिद नबी में आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा पर्दा हटाते तो वो पर्दा हटा मस्जिद नबी में दाखिल हो जाते। आप जितने मस्जिद नबी में पूरा के पूरा उम्मत मोमिना का पूरा उसके अंदर होजरे दाखिल हो गए। बड़ी कर दी गई ना। हमारे मस्जिद नबी उस वक्त उतनी बड़ी नहीं थी। हमारे मस्जिद नबी और आयशा के हुजरे के दरमियान सिर्फ पर्दा था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फजर के नमाज के बाद पर्दा हटा दे। अम्मा अमर आयशा रज़ी अल्लाह का हुजरे से सहाबा को देखते हैं। सहाबा नमाज में थे। वो खुशी थी कि पर्दा हटा, यानी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आएंगे। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ वापस नहीं आए। अल्लाह के नबी पर्दा छोड़ दिया। अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु ने समझा कि शायद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबीयत अच्छी हुई है, इसलिए अल्लाह के नबी ने पर्दा हटाया था। अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इजाज़त लेकर अपने घर गए, क्योंकि उनको कई दिनों से अल्लाह के नबी अबू बकर सिद्दीक अपने घर नहीं गए थे। उनका घर कहाँ था? मदीने के सरहद पे सना नाम के मुकाम पे उनका घर था। मस्जिद नबी मदीना के बीच में है और सरहद सना किधर है? वो सरहद आप देख लीजिए, बीच में बहुत बड़ा गैप था सरहद है उसमें मस्जिद में। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इजाजत लेके अपने घर की तरफ निकले। अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु चास के वक्त उनको इस बात का इल्म नहीं था कि अब वो वही वक्त है जिस वक्त उनके जो रफीक हिजरत है वो उनसे दूर होने वाले हैं। उनको इस बात का इल्म नहीं था। अल्लाह आयशा रजी अल्लाह अन्हा कहती है मोहम्मद बकर रजी अल्लाह अन्हा आए, अस्मा बिन अबू बकर मोहम्मद बिन बकर उनके बाद कब आए? चास के बाद, फजर के बाद। उनके मुंह में क्या कर रहे थे? मिसवाक कर रहे थे। अब देखिए आखिरी वक्त है, अगर नबी ने किसी चीज को तरजीह दी है, उम्मत को चाहिए कि वो भी उसको तरजीह दे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इतनी तेज बुखार, अम्मा आयशा ने उनके सर पर पट्टी बांधती हैं और पट्टी में से भापें निकल रही थी। इतनी ज्यादा सख्त बुखार थी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शदीद बुखार में थे, बहुत ज्यादा तकलीफ में थे। जब इस सहाबी को देखा, उनके मुंह में मिसवाक थी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन पर नजरें जमा दी। अम्मा आयशा रजी अल्लाह अन्हा के पास आखिरी वक्त रहना ये उम्मत के लिए अल्लाह के नबी आखिरी तालीमात को देना बहुत था, इसलिए आयशा अम्मा को चुना था। ये तमाम के तमाम ये चीज़ें हमने वाजिब कर दी थी वो सादिया का जो बना वीडियो, ये आपने समझ लिया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप शायद मिसवाक करना चाहते। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इशारा किया। अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा कहती है कि मेरा और वो आखिरी बात उनका ये कैसे हुआ। बाकी अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा अपने मुंह में मिसवाक को कच्चा करके दिया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंह में। जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुतमईन हो गए तो पूरा मिसवाक निकाल दिया। अब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक कलीमा दोहरा रहे थे, अल्लाहुम्मा बिर्रफीकी आला, अल्लाहुम्मा बिर्रफीकी आला। अल्लाह तू मुझे रफीका आला में जगह दे दे। अल्लाह मैं तुझसे मुलाकात करना चाहता हूँ। अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आवाज़ जो बुलंद थी अब वो आहिस्ता 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 धीमी हो रहा शुरू हो गई। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस पर की कलिमात करते, अल्लाह के नबी की हाथ की उंगली ऊपर उठी हुई थी। जैसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ कम हुई, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाथ नीचे हुआ और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रूह परवाज हो गई। अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा इस बात को समझ चुकी थी, अब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे दरमियान नहीं रहे। अम्मा ऐसा कहती है ये 12 रबी अव्वल के दिन ऐसा गम का पहाड़ हमारे ऊपर टूटा कि हमारे पैरों तले जमीन खिसक गई कि समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। वो नबी
जो अल्लाह की पैगामात को जो जरिया वो आज हमारे दरमियान नहीं रहे, अब वो हमारे दरमियान नहीं रहे, अब वो इस दुनिया से जा चुके। अब ये खबर आग की तरफ फैलती चली गई पूरी मक्का और मदीना में। तमाम के तमाम सहाबा गम में डूब चुके थे कि ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से जा चुके, अल्लाह के नबी का इंतकाल हो चुका, अल्लाह के नबी रब से जाके मिल गए। सहाबा को समझ में नहीं आ रहा था क्या किया जाए। उमर रजी अल्लाह अन्हा इतने जलील खबर सहाबी, उनके जलाल का क्या करे जो उनको शैतान देख के भाग जाए, वो समझ नहीं पा रहे थे। वो कह रहे थे कि अगर कोई ये बात कहे कि नबी दुनिया से जा चुके, मैं उसका गर्दन उड़ा दूंगा, मैं उसका गर्दन उसके तन से जुदा कर दूंगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल नहीं हुआ, वो मूसा की तरह गए हुए हैं। मूसा गए थे ना 40 दिन तौरात के लिए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वैसे ही गए हुए हैं, नंगी तलवार लेके घूम रहे थे उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह अन्हु। गौर करिए, मैं और आप इतनी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हम लोग दूर जमाने के, ये वाकया अगर कयामत तक भी बयान किया जाए मेरी रूहें कांप उठी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये इंतकाल का वक्त का वाकया। सोचिए थोड़ी देर के लिए उन लोगों का क्या हाल हुआ होगा जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो साथ रहते थे। अल्लाह अकबर, उठते थे बैठते थे, उठते थे बैठते थे, ये सब काम करते थे। तो सोचिए, ठीक है, हमारे साथ रहने वाले, हमारे खानदान के साथ रहने वाले, अगर हमारे खानदान में किसी का इंतकाल हो गया, हमको पता चला, तो थोड़ी देर की तकलीफ होती, वो शिद्दत महसूस नहीं करते जो उनके साथ रहने वाले महसूस करते थे, है ना। सोचिए थोड़ा देर के लिए। अब अम्मा आयशा रजी अल्लाह अन्हा का हाल क्या हुआ होगा उस दिन। 18 साल की थी अम्मा आयशा रजी अल्लाह अन्हा, हमसे भी कम उम्र। सोचिए 18 साल की उम्र में अम्मा आयशा बेवा हो गई और 9 अज़वाज भी हो चुकी थी। सहाबा गम में डूब चुके थे कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारा जो मेन मरकज अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब अल्लाह के नबी नहीं रहे। अब अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह वहां पे मौजूद नहीं थे। कहाँ गए हुए थे? अपने घर को गए हुए थे ना। मालूम हुआ वापस आए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पर एक चादर डाली हुई थी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो चादर हटाया गया और उसके बाद उनके पेशानी पर अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु बोसा देते हैं और फिर कहते हैं, आए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप पे 2 मौतें जमा नहीं हो सकती जो मौतें आपको ये आ चुकी। अब सोचिए अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु, अल्लाहु अकबर, ये होता है एक खलीफा, ये होता है एक लीडर। उसके दिल में जितनी चाहे गम हो, लेकिन उम्मत को नजर में रख के वो कभी वो रोते हुए पलाते हुए, वो लोगों के सामने बहाना बनाते हुए नहीं बैठ जाते कोने में, बल्कि अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु के तरह लोगों की तरह इंतशार को कम करते हैं और लोग इंतशार का शिकार हो चुके होते हैं। अब यहाँ भी उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह अन्हु का एक मामला आ गया। अली रजी अल्लाह एक कोने में, मतलब यहाँ आ चुके हैं, हज़रत बिलाल भी आ चुके हैं। अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु अपने इमामी जोश से तमाम सहाबा को आवाज़ देते हैं। उनकी आवाज़ सुनकर तमाम के तमाम सहाबा कान खड़े हो जाते हैं और जैसे अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु आवाज़ लगे, पूरे के पूरे सहाबा आगे खड़े हो जाते हैं। अब उमर रजी अल्लाह अन्हु ठहरे हुए नंगी तलवार लेकर, अभी खुतबा नहीं सुना, अभी वो नहीं सुना उमर बकर क्या कहें, अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह क्या कहा वो नहीं सुने। उमर जूसी बलबले से कहा अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु, लोगों सुन लो, जो मोहम्मद को पूजा करता था वो सुन ले कि वो मोहम्मद इस दुनिया में नहीं रहे, वो मर चुके हैं, अब उन पे मौत आ चुकी है। और अब सुन ले, जो अल्लाह की इबादत करता है, अल्लाह अल हई है, वो हमेशा जिंदा रहने वाला है। और फिर उसके बाद सूरह अल इमरान के तलावत की। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे भेजे हुए रसूल है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जो मौत आनी थी वो आ चुकी। और अगर किसी नबी को सूरह अल इमरान की आयत में बता रही हूँ, सूरह अल इमरान की आयत बता रही हूँ, अगर किसी के नबी को शहीद कर दिया जाए, कत्ल कर दिया, लोगों सुन लो, जो मोहम्मद की पूजा करते हैं वो इस दुनिया में ना रहे, जो सुन ले, जो अल्लाह की इबादत करता है, अल्लाह अल हई है, वो हमेशा जिंदा रहने वाला है।
اور پھر اس کے بعد سورہ ال عمران کی تلاوت کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھیجے گئے رسول ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ موت آنی تھی, آ چکی. اور اگر کسی نبی کو یہ سورہ ال عمران کی آیت کو میں بتا رہی ہوں, سورہ ال عمران کی کسی نبی کو شہید کر دیا جائے, قتل کر دیا جائے, کیا تم اس کے دین سے پھر جاؤ گے؟ اگر تم پھر جاؤ گے تو اللہ کے دین کو کوئی نقصان نہیں ہوگا. جیسے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ یہ سورہ ال عمران کے یہ سنی نا آیت نا, تو وہ تلوار کو پھینک دیا, ان کے نیچے سے زمین نکل گئی پیروں کے نیچے سے. عمر خطاب رضی اللہ عنہ نے یہ بولے یہ آیت کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نازل ہوا. آج سن کر ایسے سنے جیسے میں نے پہلی بار اس آیت کو سنا. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا, بیٹھ گئے, خاموشی اختیار کر لیے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگ آ رہے ہیں, جا رہے ہیں, دیکھ رہے. اب یہ واقعات کب ہوا؟ 12 ربیع الاول چاس کے وقت ہوا. اب یہاں پر دیکھیے, یہاں پر جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا نا, ابھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین نہیں ہوئی ہے. یہ بہت اہم پوائنٹ میں بتا رہی ہوں آپ کے درمیان. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کفنایا گیا, دفنایا نہیں گیا. کچھ مہاجر, کچھ انصار وہ جگہ سے تھوڑا دیر ہٹے. اب وہ جس جگہ پہ جو جگہ جماعت ثقیف ہے, بنو سعد میں کچھ صحابہ جمع ہو کے کہنے لگے, اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اس دنیا میں نہ رہے, اب اس کے بعد خلیفہ کون ہوگا؟ مہاجر میں سے, انصار میں سے لوگ جو جمع ہوئے, وہ لوگوں میں سے ابو بکر رضی اللہ عنہ, عمر بکر رضی اللہ عنہ بھی دونوں آ گئے. عمر بن رضی اللہ عنہ نے سنے, اے انصار, تم اللہ کے نبی کے بھی انصار تھے, تم اللہ کے نبی کے بعد جو خلیفہ, تم ان کے بعد بھی انصار ہو گئے, تم میں سے کوئی خلیفہ نہیں بن سکتا. کیوں؟ کیونکہ اللہ کے نبی نے کہہ دیا تھا کہ خلیفہ اگر کوئی بنے گا وہ قریش میں سے بنے گا. اور جیسے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہی, تمام کے تمام جو صحابہ جو مہاجر انصار منزل ہے, عمر رضی اللہ عنہ کی طرف دیکھنے لگے. عمر رضی اللہ عنہ نے اس حالات میں دیکھ کے بھنک چکے کہ لوگ میری طرف اشارہ کر رہے ہیں. عمر رضی اللہ عنہ بدبختی ہے میرے لیے کہ میری خلافت میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ رہے, میرے لیے بہت بڑی بدبختی کی بات ہوگی. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ آگے بڑھے, جیسے لوگ کا نشانہ دیکھا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا, میں آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرتا ہوں, آپ کو خلیفہ بناتا ہوں. جیسے عمر بن رضی اللہ عنہ نے آگے بڑھے, تمام کے تمام وہاں پہ صحابہ, کون سا بنی سے آیت کا کون سا جگہ تھا, وہ ثقیفت وروس عاد, تمام کے تمام جتنے صحابہ موجود تھے وہ آ کے پورے بیٹھ گئے. کس کے ہاتھ پہ؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پہ. اب یہ کچھ لوگوں کے درمیان نہیں ہوئی. اب یہاں پہ جو باسیات جو رافق جو ہے وہ اس بات کی جو دلیل, جھوٹی دلیل دیتے, جس وقت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیعت کی کہ ان کے ہاتھ پہ کہ ان کو خلیفہ بنایا جائے گا, اس وقت عبید رضی اللہ عنہ اور علی رضی اللہ عنہ موجود تھے. یہ جھوٹی بات ہے, وہاں پہ وہ موجود نہیں تھے, لیکن بیعت انہوں نے کی تھی, کیونکہ ان تک یہ بیعت کی خبر پہنچی نہیں تھی. جب خبر پہنچی تو دونوں نے بیعت کر لیا. اب دوسرا دن آیا, اب یہاں پہ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ چل رہا ہے, کیونکہ ان تک یہ بیعت کی خبر نہیں پہنچی تھی. جیسے ان دونوں کے پاس خبر پہنچی, وہ بیعت کی عہد کر لی. ابھی یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ چل رہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کا جسم موجود ہے, اللہ کے نبی کو نہ کفنایا گیا نہ دفنایا گیا, لیکن خلیفہ کو پہلے چنا گیا. پہلے بات کیا واضح ہو گئی, بات کیا واضح ہو گئی, کیا نقطہ نکلا اس سے؟ لیڈر کسی بھی امت کے لیے بہت اہم رکھتا ہے, بہت اہمیت کے حامل اللہ کے نبی, جو دنیا کے جانے کے بعد اگر کوئی لیڈر نہ ہوتا, یہ پوری کی پوری امت انتشار کا شکار ہو جاتی. پورے اسلام کو پورا ختم کر چلے دشمن پورا تیار تھے, اللہ کے نبی کا پورا انتظار کر رہے تھے انتقال کا. اس سے اس بات کا دلیل میں یہ کہ کسی بھی جگہ کے لیے ایک لیڈر کمپلسری ہے. اللہ کے نبی یہاں تک کہا کہ اگر تم میں سے کوئی 4 لوگ ہیں, کوئی 3 لوگ ہیں, تو اس میں سے کسی ایک میں سے امیر بنا لو, کسی کو ایک کو لیڈر بناؤ, کیونکہ لیڈر کے بغیر کوئی کام نہیں ہوتا ہے, اتحاد کے ساتھ کام نہیں ہو سکتا. آج افسوس کی بات ہے میری بہنوں, آج مسلمان کا جتنا حال برا ہو رہا ہے نا, آج کاٹے جا رہے ہیں, جلائے جا رہے ہیں, پیٹے جا رہے ہیں. فلسطین دیکھ لیجئے, برما دیکھ لیجئے, چائنا دیکھ لیجئے, کشمیر دیکھ لیجئے, شام دیکھ لیجئے, ایران دیکھ لیجئے, عراق دیکھ لیجئے. آج جتنے مسلمانوں پہ جو ظلم ہو رہا ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ میرے اور آپ کو پرسان حال کوئی نہیں ہے.
आज मेरा और आपका कोई परेशानी हाल होता ना, ये उम्मत एक उम्मती होती। आज हम फिरका में बढ़ चुके हैं, तमाम के तमाम उम्मत को एक जगह लाने पर ये अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु ने हमको पैगाम दिया। और एक लीडर कंपल्सरी है, एक लीडर, जब तक लीडर नहीं बनेगा मेरा और आपका, तब तक ये उम्मत इसी तरह इंतशार का शिकायत बनती रहेगी। याद रखिए इस बात को। अब यहाँ पर तमाम के तमाम लोगों को मालूम हुआ, उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने ऐलान कर दिया कि ऐ लोगों, हम सब ने अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु का हाथ पे बैत कर लिया, अबू बकर सिद्दीक को खलीफा बना लिया, अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु का खलीफा, मुस्लिमीन मतलब मुसलमानों का खलीफा। ठीक है, अब यहाँ पर अब यह दिन हुआ, पीर का दिन हुआ, अब उसके बाद मंगल का दिन आया। मंगल के दिन ये बात हुई, अल्लाह के नबी कौन नहलाएंगे, कौन कपड़ा पहनाएंगे और कहाँ दफन करेंगे। फिर अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा, मैंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहते हुए सुना, क्योंकि अंबिया को वहीं दफन किया जाता जहाँ पे उनका इंतकाल होता। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को थोड़ा सा जगह हटाया जाता, उनकी तब कब्र खोदी जाती है, और फिर उस वक्त बगली कब्र खोदी जाती है। ठीक है, बगली अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बगली कब्र खोदी गई। 6 सहाबा मिलकर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अहले बैत में से जो थे आते हैं, नहलाते हैं, और 3 यमनी चादरों में कफन दिया जाता है। और उसके बाद फिर वक्त आता है नमाज जनाजा। कफन तो दे दिया गया, अब यहाँ पे शुरू हो चुकी नमाज जनाजा। अब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 3 नमाज जनाजा किसी ने नहीं की। इस बात को नोट रखिए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जनाजे की नमाज किसी ने भी इमामत करके नहीं पढ़ाई। बल्कि हुजरा छोटा था, इसलिए लोग फर्दन आते और नमाजें अदा करते और चले जाते। अब और तो जितने बड़े लोग थे, सहाबा जितने थे, उन लोगों ने नमाजें अदा की, फिर उसके बाद बच्चों ने अदा की, उसके बाद औरतों अदा की। ये बुखारी की हदीस है, मेरी मायके की ससुराल की हदीस। मैं आपको हदीस नहीं बता रही हूँ, मैं बुखारी की हदीस बता रही, सही बुखारी की हदीस। कौन कौन पढ़े बोले? सहाबा, जो बच्चे सहाबा थे, उसके बाद ख्वातीन ने, औरतों ने नमाजें अदा की। आज हमारे पास नमाजे जनाजा अगर कोई औरतें अदा करे तो इतना सारा फितना क्रिएट हो सके। अब ये है वो है, मैं तो वही हूँ जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत मुझे बताती है। इसीलिए मैं कहती हूँ तहकीक करो, तकरीद नहीं। अब तक थे अंधेरे में, लेकिन अब अंधेरे में नहीं रहेंगे, क्योंकि हमारे जन्नत को दांव पे नहीं लगा सकते ना जी, है ना। सब कर सकते हैं, जान गंवा सकते हैं, लेकिन नस्ल को कुर्बान कर सकते हैं, लेकिन अपने जन्नत को दांव पे नहीं लगा सकते। ये सौदा हमसे नहीं हो सकता। सब कुछ होगा, लेकिन अल्लाह के दीन को, शरीयत को कॉम्प्रोमाइज हमसे नहीं होगा। लिहाज पे यह दीन का कॉम्प्रोमाइज करेंगे तो वह जन्नत का कॉम्प्रोमाइज होगा। और अगर जन्नत का कॉम्प्रोमाइज एक मोमिन हरगिज़ नहीं कर सकता। अब यहाँ पे देख लीजिए, इधर आ जाइए। नमाज़े जनाजे अदा की, हमको यहाँ पे मिला क्या? अगर जनाजा कोई जनाजे नमाज कोई मसाजिद में कोई मौजूद है कि हम जनाजे नमाज अदा करें, मोमिनीन के मगफिरत के लिए दुआएं करें। अगर हम लोगों की मगफिरत के लिए दुआएं करें तो ना हमारी भी होगी। अगर हम किसी के लिए नहीं करेंगे तो हमारे लिए कौन करेगा? हाँ बोलिए, हमको करना चाहिए, बल्कि हमारी ये निज़ाम होना चाहिए, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में वो निज़ाम मौजूद था, उसको मिटा दिया गया। हमारे पास इंडिया और पाकिस्तान, ये पूरा का पूरा मामला है। ठीक है, अब तो यहाँ पे अब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जनाजे नमाज अदा की गई। मंगल का वक्त निकल गया, पूरा बुध का सारा दिन निकल गया, 3 दिन हो गए यहाँ पे। अल्लाहू अकबर। खलीफा अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु बना दिए गए। तमाम के तमाम लोगों ने यहाँ पे बैत कर ली। अब यहाँ पर बुध की रात में बहुत कम वहाँ पे सहाबा मौजूद रह गए। तमाम के तमाम सहाबा अपने घरों को निकल गए, क्योंकि वो जो हुजरा था, वो कितने लोग वहाँ पे हुजरे में रहते। अमर आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा कहती है, बुध की रात में हमने जब फोड़ों की आवाज़ सुनी, तब हमने महसूस किया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दफनाया जा रहा। बस वरना उससे पहले हमको खबर नहीं थी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दफनाया गया या नहीं गया। अब यहाँ पे गौर करिए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दफना दिया गया।